nervous tissue. Friend, nervous tissue is important for all exam. Okay, nervous tissue has a two kind of cells, neurons and neuroglia cells. Friend, there is a nervous tissue has a two kind of cells, neurons and neuroglia cells. Neurons is a functional unit of nervous tissue. The neurons are also called nerve cells. The nerve tissue is constituted to the brain, spinal cord, nerve and sensory cells and the sense organ. A single neuron has a generalized appearance shown in this figure. Here show the nervous system. There is a all class for the important and nucleus, dendrix, axon, medulla oblongata, cells, body, node of Ranvier and neurolemia, axon ending. And here is a cross section. There is a vascular fluid flow on the channels, nerves, scum, cells, coatings, axon, nerve fiber, bundle of nerve fiber, and supporting tissue. This is important for exam. Like in other cells of body, there are nerve cells are neuron has the main cell body. They called cytome, from which is a project over the varying number of process, one of which is usually very long. This long fiber is called the axon. The small branching process of the cytome is called to the dendrix. Gigis dendrix means tree. The cells bounded by the plasma membrane, spores or nucleus and other organelles like a mitochondria. The cytones also contain a dark granules called to Nesis bodies. These are made of RNA and protein. The Nesis body is made of RNA and DNA and transmission of nerve impulse. The branchious dendrix receive the stimulus and transmit it through their cytone to be axon, which finally transmit there through its variously branches into the either to the muscles to order it is a contract or to be a gland, and there are to be ordered to the secrete the axon constituted to nerve fiber. The nerve fiber may or may not be covered by extra sedate called to the medullary sedate is secreted by sedate cells. It is made of myelins, a lipid-like a substance. Accordingly, the nerve fiber is termed medullated and non-medullated. The medullated sedate is not continuously and broken. It is a node of Ranvier. देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक, कहते हैं तंत्रिका ऊतक जो है कई जगहों पर जो है मान्य फुल अपना योगदान देता है। आप कोई भी क्लास में हो, तंत्रिका तंत्र के बिना जो है कोई चैप्टर नहीं होता है साइंस का। तो ये तंत्रिका तंत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको हर एक पहलू हर एक पार्ट के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहते हैं तंत्रिका ऊतक जो होती है जिसे हम नर्वस टिश्यू भी कहते हैं। तंत्रिका ऊतक में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, याद रखना दोस्तों, दो प्रकार के जो होते हैं कोशिकाएं होती है। एक होता है तंत्रिका कोशिका जिसको हम न्यूरॉन नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होता है अंतरिबंध जिसको हम इरोगिला कहते हैं। इरोगिला यानी कोशिकाएं यानी तंत्रिबंध कोशिकाएं, और ठीक है जिसको हम इरोगिला भी कहते हैं। यानी दो पार्ट जो होता है तंत्रिका तंत्र में मौजूद होती है, एक होता है तंत्रिका कोशिका और दूसरा होता है अंतरिबंध कोशिका, जिसको इंग्लिश में अगर हम देखा जाए तो इसको टू टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है। एक जो है न्यूरॉन और दूसरा जो है न्यूरोगिला। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं न्यूरॉन क्या है। देखिए, न्यूरॉन जो है तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक की एक प्रक्रियात्मक इकाई है। देखिए दोस्तों, ये प्रक्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिकाएं भी कहते हैं, जो न्यूरॉन होती है हमारे बॉडी में। ठीक है, न्यूरॉनों को जो है तंत्रिका कोशिकाएं भी कहते हैं। तंत्रिका ऊतक जो होती है मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं, संवेदी कोशिकाएं और ज्ञानेंद्रियां बनाती है, यानी सभी जगह जो है बॉडी में ये फैली होती है। कहते हैं एक न्यूरॉन का सामान्य स्वरूप जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, और इस चित्र से जो है आप हमेशा ही आपको याद रहता है, आपको समझ रहती है कि इस तरह के चित्र जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसको जो है आपके समझ दोस्तों इसको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप इसको याद नहीं रखते हो, ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन है अधूरा रह जाता है। तो देखिए, अगर आप न्यूरॉन के डायग्राम अगर ड्रॉ करते हो तो याद रखना उसमें केंद्रक पाया जाएगा जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, निरसल काय पाया जाता है, मज्जा पाया जाता है, दुमिकाएँ पाया जाता है,
जिसको डेंड्रेट्स कहते हैं। उसके बाद तंत्रिकाक्ष कहा जाता है, जिसे जो है न्यूरोमा कहते हैं। ठीक है, मज्जा यानी एक्सॉन जो होता है मेजुला सीस कहते हैं। और जो है रेनवियर्स असंधि नोड पाया जाता है। और लास्ट अंतिम जो सिरा होता है वो तंत्रिकाक्ष अत्यंत सिर होते हैं। अगर इसी को क्रॉस सेक्शन का अगर आप वर्णन करोगे, जानोगे, तो इसमें जो आपको समक्ष होगा कुछ इस तरह से चित्र दिखेगा, जैसा कि यह चित्र में दिखाया जा रहा है। इसमें जो होगा आपका संवहन तरल प्रवाहपरान चैनल पाया जाएगा, एक तंत्रिका पाया जाएगा, श्वसन कोशिका आवरण पाया जाएगा, इसके बाद तंत्रिका कक्ष पाया जाएगा और तंत्रिका तंतु पाया जाएगा जो रेशे के रूप में प्रेजेंट होगा। उसमें तंत्रिका तंतुओं के जो है बंडल के रूप में आपको दिखेगा। उसका आलंबन ऊतक दिखेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो है आप तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका रेशों को जो है आप विभक्त कर सकते हो। तो कहते हैं जब एग्जाम में आता है, जब तंत्रिका तंत्र के बारे में आता है, तो इस सारी बातें को वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके जो एग्जामिनर है फुल में से फुल मार्क्स देगा। क्योंकि डायग्रामेटिक के साथ वो क्या पूछ लेते हैं कि इसका विस्तृत वर्णन करें, तो वर्णन के रूप में आपको यही बातें जो है वहाँ पर लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। कहते हैं शरीर के अन्य कोशिकाओं के भांति जो होता है न्यूरॉन में एक प्रमुख कोशिका काय होती है, जिसे जो हम साइटोन कहते हैं, साइटोन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखिए साइटोन क्या होता है। शरीर के अन्य कोशिका भांति न्यूरॉन में एक प्रमुख कोशिका काय होती है। जो साइटोन होता है वो प्रमुख कोशिका काय होती है, जिसे साइटोन के नाम जाना जाता है। कहते हैं साइटोन से अनेक प्रकार के प्रबल्य निकलते हैं, अनेक प्रकार के जो है प्रबंध निकलते हैं जो बॉडी के विभिन्न पार्टों तक पहुँचाते हैं, जिसमें से एक प्रबंधन आमतौर से बहुत लंबा होता है, यानी एक जो होता है काफ़ी लंबी होती है। इस लंबे रेशे को जो है हम क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष, जिसको हम इंग्लिश में एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन। ठीक है, जो लंबी रेशे होते हैं जिसको हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं और जो है हिंदी में, और एक्सॉन जो है इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद है साइटोन के अपेक्षित छोटी किंतु सखित प्रबंधों की दुमिका यानी डेंट्रिक्स पाया जाता है। देखिए डेंट्रिक्स जो होती है विभिन्न भागों में बांट देती है। डेंट्रिक का मतलब होता है ग्रीक डेंड्रोस का मतलब होता है, का अर्थ होता है वृक्ष यानी दुम्र, यानी वृक्ष की भांति ये दिखता है। अंदर छोटे छोटे दुम की आकृति का होता है। अब हाथ में देखोगे, कहीं भी देखोगे तो ये दुमिकाएं आपको साफ तौर पे नजर आएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से घिरी हुई होती है। किससे घिरी होती है दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली से जो होती है पूरी तरह से ये घिरी होती है। इसमें एक केंद्रक होता है तथा अन्य अंग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आदि मौजूद होते हैं, यानी इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया आपके साथ जो है ये जुड़ी रहती है, यानी इसके साथ प्रेजेंट रहती है। तो यानी एक केंद्रक होते हैं, अन्य जो है अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आदि मौजूद रहते हैं। कहते हैं साइटोन में गहरे रंग की कोशिका भी उपस्थित होती है। देखिए दोस्तों साइटोन में जो होता है गहरे रंग के जो है उपस्थिति होती है, जिन्हें हम निस्लस पिंड भी कहते हैं, यानी निस्लस पिंड भी कहते हैं। ये पिंड जो होता है आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ये आरएनए और प्रोटीन के। क्या बना होता है, निश्चल पिंड। जो निश्चल पिंड होता है वो याद रखना जो होता है आरएनए और प्रोटीन के बना होता है। साइटोन में गहरे रंग की कोशिकाएं भी उपस्थित होती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, निश्चल, जो कि किससे बना होता है, आरएनए और प्रोटीन के ये बने होते हैं। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है कहते हैं तंत्रिका आवेश का प्रक्षेपण। देखिए तंत्रिका आवेग का प्रक्षेपण करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। कहते हैं शाखित दुमिकाएं, जो शाखित दुमिकाएं होती है यानी डेंट्रिक्स होती है, उद्दीपित प्राप्त करती है, यानी ये क्या करता है, उद्दीपन प्राप्त करती है और ये उसे साइटोन के जरिए एक्सॉन तक प्रक्षेपित कर देती है, यानी साइटोन तक पहुंचाती है। एक्सॉन उसे अंततः अपने विविध रूप में शाखित सिरों के जरिए या तो पेशी तक, ताकि वह संकुचित हो सके, यानी पेशी तक जो होता है ये फैल जाता है, संकुचित हो जाती है, अथवा किसी ग्रंथि तक, यानी ताकि वह श्वेत कर सके, यानी वो ग्रंथि तक पहुँच। देखिए दोस्तों आपको पता है कि अगर हमें कोई चींटी कहीं भी पैर में काटा या हाथ में काटा या हमारे बालों को भी स्पष्ट किया, तो कहते हैं इन्हीं तंत्र की वजह से जो है हम सब चीज़ अनुभव कर पाते हैं। इसी वजह से जो है हमें जो है दर्द यहाँ तक महसूस होती है, यानी सारे मैसेज जो है दिमाग तक जो है तंत्रिका को ही पहुँचाने का कार्य होता है। अगर मान लीजिए कहीं भी तंत्रिका जो है कार्य करना बंद कर देता है तो वो बॉडी पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज का मतलब समझते ही होंगे कि वो जो है ऑर्गन काम करना ही, यानी वो बॉडी पार्ट जो है काम करना ही बंद कर देता है।
चाहे उसमें आप काटी मारो, कील मारो, चाहे कुछ भी आप करो, चाहे दर्द करो, कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि तंत्रिका जो कक्ष होता है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होती, वो किसी तरह से डेड हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँचता और हमें जो है कुछ भी महसूस नहीं होता। आपको देखते ही होगा, जो डॉक्टर एनेस्थीसिया देता है यानी बेहोश करता है, जो देता है उस जगह सुन करता है, तो इसी तरह से जो है वहाँ के जो है नर्व्स जो है सुन पड़ जाते हैं और उससे जो होता है हमारे ब्रेन तक कोई मैसेज नहीं पहुँचते हैं। तो ये तंत्रिका अवयव अपक्षण के कारण ही ऐसा होना संभव होता है। कहते हैं इसका कार्य जो होता है अपने विविध रूपों में संकेत सिरों के जरिए या तो पेशी तक यानी ताकि वह संकुचित हो सके, अथवा किसी ग्रंथ तक ताकि वह स्वेत कर सके, यानी भेजना और जो है आने वाला कार्य करता है। ठीक है, यानी हर जगह ये भेजता है इन्फॉर्मेशन को। एक्सॉन मिलकर तंत्रिका रेशे बनाते हैं, जो एक्सॉन होता है वो मिलके जो है तंत्रिका रेशे बनाते हैं। तंत्रिका रेशे के ऊपर कुछ स्थानों पर तो एक अतिरिक्त अछद्र द्वारा ढका हो सकते हैं, यानी उसको ढक देते हैं, या नहीं भी हो सकता है, दोनों उपस्थिति हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जिसे हम मज्जा अछद्र कहते हैं। मज्जा अछद्र कहते हैं। इसका कहते हैं दोस्तों, इसका जो स्वाद अछद्र को जो है कोशिकाएं करती है, ये अछद्र लिपिड जैसे पदार्थ यानी मायलिन का बना होता है। देखिए जो ये किससे बना होता है, मायलिन का बना होता है। ठीक है, तदनुसार तंत्रिका रेशे मज्जा आच्छादित तथा अनाच्छादित कहलाता है। तभी तो हम इसको कहते हैं आच्छादित या अनाच्छादित कहलाता है। मज्जा छाद्र और अनवंशित नहीं होती है, क्योंकि रेवियंस असंधि पर मज्जा आच्छाद्र नहीं होता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक जो था हर एक क्लास के लिए था। जो बच्चे हैं 7वीं हो 8वीं 9वीं 10वीं जहाँ तक भी क्लास में ये आता है तंत्रिका तंत्र, उनके लिए जो है इंग्लिश हिंदी दोनों रूपों में वर्णन है, तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप इसी तरह तक जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर को देखते रहिए, समझते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि समय समय पर जो है कोई ना कोई क्लास के लिए मैं अच्छा से अच्छा टॉपिक डालता रहूँगा जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और इसको समझना आपके लिए भी बहुत ही जरूरी होगा। एक बार समझिएगा सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा तंत्र का जो कार्य होता है शरीर के विभिन्न भागों में, ये जो है मैसेज से कोई है ब्रेन तक पहुँचाने का कार्य यही करता है कि अगर ये न रहे तो हमारा जो वो बॉडी होगा वो हमेशा के लिए जो कहते हैं उसको पैरालाइज्ड हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।